dedicated to building a vibrant, ethical, and inclusive research culture across India. Registered under the Companies Act of 2013, Shodh is now active in more than 20 states and is steadily growing as a hub for research dialogue and collaboration. Shodh bridges the gap between academic research and real societal needs. Shodh regularly organizes seminar, panel discussions, methodology, workshops, research internships, and competitions, all designed to prepare students like you for rigorous high-quality research careers. Three core objectives of Shodh are to instill research aptitude, to build research capacity, and to create a unified platform. In simple words, Shodh is here to help you evolve from aspirant to academic change makers. Thank you so much. Thank you, Nisaji, for articulating the spirit and scope of Shodh. Now, I would like to invite Mr. Alok Ji, a research scholar from the Department of Sociology at the University of Lucknow, to present the introduction of our speaker and guest of honor. Alok Ji. Hello, very good evening to all. As we move forward in this enriching academic gathering, it is now my privilege to introduce our esteemed guests and experts. To begin with, we are honored to introduce Dr. KBS Madan, an eminent academician and a respected name in the field of higher education and competitive exam preparation. He is the faculty co-founder director of NetMentor.net, a leading mock test platform for various prestigious competitive examinations. Dr. Madan holds a postgraduate degree in business administration from the Haryana School of Business, GJUST Hisar, and has qualified the UGC NET in management with over 18 years of extensive teaching and research experience. He has guided and mentored thousands of aspirants in realizing their academic and professional goals. He has previously served in several key academic leadership positions, including Associate Director, School of Business Management, Arni University, Himachal Pradesh, Director, Punjab Business School, Mohali, Head of Department Management, University, Solan, and Faculty in Management and Chandigarh University, SAS Nagar, Mohali. Dr. Madan is also a highly sought-after trainer and keynote speaker in UGC and AICET-sponsored faculty development programs and has conducted numerous training sessions at reputed institutions across the country. His contributions continue to shape academic excellence and inspire students and educators alike. Alongside him, we are deeply privileged to have Ms. Toshiba Shukla, a BTech Gold medalist and MTech who has also qualified UGC NET JRF. She currently serves as a educator at Unacademy and a trainer and RCBP Noor Hana Academy of Administration, contributing to the preparation of civil servants. Moreover, she is the president of JNU Insights, a prominent academic society. Her authorship of three widely acclaimed books for UGC NET Paper First, published by Disha Publication and Oswal Books, makes her a respected and influential figure among students and educators alike. Furthermore, we are also pleased to introduce Mr. Arjun Anandji, the national convener of Shodh. He hails from Dharamsala, Himachal Pradesh, and is currently a doctoral candidate at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has qualified UGC JRF in political science and UGC NET in international relations. Mr. Anand's research interests are centered on epistemological and cultural studies. He has also participated as a delegate in the International Youth Delegation to China in June 2016, reflecting his international exposure and engagement. Serving as the national convener of Shodh since 2023-24, he currently resides at JNU and continue to contribute actively to academic and organizational leadership. Together, their presence elevates this session and inspires us to strive for greater academic excellence. Thank you. Over to Jatin ji. Thank you, Alok Ji. Now, I would like to invite Dr. KVS Madanji
for his deliberations. Over to you, sir. Sir, please unmute your microphone. Thank you, so nice of you for this kind invitation. आपने जो मेरी इंट्रोडक्शन थी दैट वाज रियली वेरी नाइस। तो जो डॉक्टरेट है उसको मैं परस्यू नहीं मतलब किया मैंने, तो दैट वे टेकन एज प्रोफेसर केवीएस प्रधान। तो इट कैन बी टेकन इन ए वेरी हम्बल मैनर कि जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी है, तो आई कुड सिंपली से कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, तो दैट वाज अगेन से डन ऑन ए वेरी हम्बल नोट कि इसमें मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि वो था दैट वाज द सोशल सर्विस, कि जो सोसाइटी है उसको सर्व कर। तो अभी मैं बुक का जो चैप्टर है वो देख ही रहा था कि हाउ शुड बी हाउ शुड द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट 1 शुड बी गिवन। तो उसमें ये मतलब मेंशन था, मतलब आई रोट इट टुडे इटसेल्फ कि इन केस की वी टॉक अबाउट द सिविलाइजेशंस, तो जो सिविलाइजेशन है उसके लिए क्या है कि जो सोशलाइजेशन है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं दे कैन लिव इन द सोसाइटी in a very in a manner so that it gives a progression to all the people say around us। तो ये aspect है that is literally very important to us कि जो socialization है that leads to the civilization। तो इसमें exactly जो socialization है उसमें जो education है that plays a very very important role कि in case कि we want to say want that जो society है उसमें progression होना चाहिए, तो उसमें जो सिविलाइजेशन है तभी उसका एक जिसको हम कह सकते हैं कि एडवांस जो सिविलाइजेशन है उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं कि जब हमारी जो सोशलाइजेशन है दैट इज डन इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। तो एजुकेशन है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। तो इन केस की वी टॉक अबाउट द एजुकेशन, तो उसमें जो हम स्टडी करते हैं एज पर द यूजीसी नेट पेपर 1 जो है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द टीचिंग, की टीचिंग क्या होती है, व्हाट काइंड ऑफ रोल डज इट प्ले इन द सोसाइटी। कि इसमें लाइक कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं, इसमें जो टीचिंग एड्स हैं वो आती हैं। तो लाइक वाइज वी कैन से टू इट जो मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का होता है कि इससे जो स्टूडेंट है वो लर्न करें, तो लर्निंग कैन बी टेकन एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। उसके बाद इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द फॉर्मल वे ऑफ द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें जो असेसमेंट है दैट से बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। नाउ वी कैन से टू इट कि इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, जैसे मूक है, स्वयं है, लाइकवाइज। तो वी कैन मेक ए एडिशन ऑफ देम। तो ये जो बेसिकली बेसिक मोटिवेशन इसमें क्या होती है कि वी गेट से ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ द से एजुकेशनल सिस्टम, कि जो स्टूडेंट है वो स्टडी करते हैं इन ए कन्वेंशनल मैनर एंड एट द सेम टाइम उनके लिए जो डिजिटल वेज हैं टू लर्न मोर एंड मोर इन ए बेटर मैनर, इफेक्टिव मैनर, so that they actually becomes a very important to us। इसमें ये है कि जो टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो दैट इज लिटरली टेकन एज अ हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो, ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। लेकिन जो स्टोरी है वो टीचिंग पे एंड नहीं होती, वी हैव टू गो टू द रिसर्च आल्सो, दैट कैन बी टेकन एज अ सेकंड यूनिट। देन वी मूव टू द कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन इज टू बी टेकन एज अ थर्ड यूनिट। तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग ये नहीं होता कि वी हैव टू सिंपली स्टडी ए पैराग्राफ एंड वी हैव टू फॉलो सर्टेन क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं दे आर टू बी लोकेटेड। तो इन केस की वी टू लुक एट द से टुडे सिनेरियोज, जो कॉम्प्रिहेंशन है इवन दैट हैज बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्योंकि कोई भी टीचर है जिसकी कॉम्प्रिहेंशन मतलब बेसिकली क्या है कि दे हैव टू कम विद द नॉलेज इन द क्लास। तो उसके उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है कि दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट वो टीच कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो इम्बाइबमेंट है दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें केस में जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका मीनिंग ये नहीं आता कि इसमें आपको कोई पैसेज आएगा विच विल बी लिंक्ड विद के 1947 है या उससे पहले जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी या कोई सोशल सीन है। तो विद द से एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी की जो आपको टॉपिक्स जो देखने के लिए मिलते हैं इवन दे हैव बिकम्स अ वेरी डायनामिक इन नेचर। इसके लिए मेरी एक जनरल सी सजेशन रहती है कि इवन सम स्टूडेंट्स हैं दे फेस ए लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरी उनको यही सजेशन रहती है
कि उनको जो न्यूज़पेपर रीडिंग है या जो मैगजीन्स होती है, इवन इन केस की भी ट्राई टू लुक एट द यूट्यूब पे जो चैनल्स आते हैं, तो उसकी जो कॉन्टिन्यूस मतलब जो उससे इनटेक्स हैं वो उनको मिल सकते हैं, कि जिससे उनको हेल्प मिलती है कि हाउ टू हैंडल से दिस काइंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है कि आपने डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनको हैंडल किया हुआ है, तो जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड दे कैन बिकम से वेरी इजी टू यू। बट उसमें ये होता है कि उसमें जो प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इट शुड नॉट बी टेकन इन ए वेरी कन्वेंशनल मैनर, कि टॉपिक आया उसके आंसर है वो हम लोकेट कर रहे हैं। तो दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी मतलब कन्वेंशनल अप्रोच। तो वी नीड टू बी वेरी से एग्रेसिव ऑन दिस थिंग, कि जो अपनी नॉलेज है उसकी जो अपडेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कि फर्स्ट वी स्टडी की व्हाट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड रिसर्च है, थर्ड में कॉम्प्रिहेंशन है। इन केस की वी कम टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दिस कैन बी टेकन इन कॉन्टिन्यूटी विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि इसमें टीचिंग है उसके बेसिक क्या होते हैं, लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है। बट वंस इट कम्स टू द डिलीवरी पार्ट, तो उस केस में क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने देख के चलना है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें बेसिकली क्या है कि दिस कैन नॉट बी टेकन इन ए वेरी इंटीग्रेटिव फॉर्म, कि हाँ जी क्वेश्चन मतलब जो भी नॉलेज है आपकी इट इज टू बी डिलीवर्ड इन एनी पॉसिबल मैनर। तो उसके लिए भी आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो दैट वे जो कम्युनिकेशन है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। देन वी कम टू द मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स है इट इज़ अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें 2 या 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपकी मैथमेटिक्स है उसकी अच्छी खासी नॉलेज है आपको, कि उसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, उसके जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद है, तो यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट द टॉपिक ऑफ द डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है, दिस कैन बी मतलब पिक्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिनकी जो अटेंटेशन है इट मस्ट बी डन इन ए वेरी सीरियस मैनर। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लॉजिक है उसकी एक एप्लीकेशन होती है। देन वी कम टू नो कि ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, कि आपने जितनी इसकी प्रैक्टिस की है तो उससे आपकी एक जो ऑटोमेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। तो दैट वे दीज टॉपिक्स कैन बी टेकन इन द से कंटिन्यूटी, कि आपने मैथमेटिक्स है उसको स्टडी किया हुआ है, इसके अराउंड जो मैथमेटिक्स के अराउंड आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी अपने करने हैं। तो यू आर इन ए पोजिशन टू अटेम्प्ट 7 to 8 क्वेश्चन। 7 to 8 क्वेश्चन का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि चाहे आपका सब्जेक्ट है वो लिटरेचर का है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, या व्हाट्सएवर इट इज। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि इन केस की यू आर एबल टू अटेम्प्ट से 7 to 8 क्वेश्चंस। तो उसमें यू कैन सी टू इट कि आपके जो 14 या 16 मार्क्स हैं वो आपको मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ से बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये टॉपिक है, इसको आपने प्रॉपरली करना है। एंड जो मैथमेटिक्स है इट दिस कैन नॉट बी टेकन टू द लास्ट इंस्टेंस, क्या जी आपका एग्जाम होने वाला है 10 to 15 डेज के बाद, तो उसकी आप जो प्रैक्टिस है वो आप स्टार्ट करना शुरू करते हो। इवन जो मैथमेटिक्स है उसमें जो टॉपिक्स है उसमें काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, कि जैसे मीन मोड मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या इन केस की आई टॉक अबाउट तो उसमें आपको हार्मोनिक मीन है उसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इट हैज बिकम लिटरली बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज। तो इसकी जो एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द एग्जाम, की एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, दैट दे विल स्टार्ट ऑन द 31st of December, एंड दैट विल से टेक्स 1 week टू फिनिश, की 5th या 6th को आपके एग्जाम चलने हैं आपके। तो इसमें अपने स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन केस की केक तो मतलब आज 8th है, तो कम से कम 5 to 7 डेज हैं उसमें आपको डिवोट करने चाहिए टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स, ताकि इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो। और जो मैथमेटिक्स है उसमें जो कॉन्फिडेंस है दैट मैटर्स अ लॉट टू अस। एक आपका जो मैथमेटिक्स है उसका टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, उसको हम कहते हैं कि लॉजिकल जो रीजनिंग के एस्पेक्ट्स है। इन केस की सबसे पहले जो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहिए दैट इज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज है
दैट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज का ये मतलब नहीं होता कि इसमें हमने इसके जो ग्रामर के रूल्स है वो देखने हैं, लिटरली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो अपनी जैसे सेंटेंसेस हैं उनकी आपने स्ट्रक्चरिंग करनी है सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। तो उस पर जो स्ट्रक्चरिंग है उस पर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसमें प्रोपोजिशंस आती हैं, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है। देन वी कैन स्पीक अबाउट से जो लॉजिक का जो स्केयर होता है, स्केयर ऑफ मतलब जो बेसिकली दैट इज ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ लॉजिक है। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें एक टॉपिक्स है फेलेसिस का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है, देन वी हैव टू मूव टू द इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम है, इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द सिविलाइजेशन एस्पेक्ट। तो जो सिविलाइजेशन का जो एस्पेक्ट है उसमें वी कैन से टू इट कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है दैट कैन बी काउंटेड एज द ओल्डेस्ट वन। ये 5000 10,000 ईयर्स उसकी ओल्ड हिस्ट्री है। तो जो वे जो डेवलप हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अपने ध्यान में देख के रखना है कि इसमें जो एंशियंट जो नॉलेज सिस्टम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये आपको लगेगा कि हाँ जी ये काफ़ी डिफरेंट मतलब टॉपिक है, इसको आपने स्टडी नहीं किया होता ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ट्रबल आती है। लेकिन इसकी आपने मल्टीपल वे में स्टडीज करनी है सो दैट यू आर एबल टू डेवलप ए ग्रास्प ऑफ द टॉपिक्स। तो इसमें कम से कम आप ये मान के चलो कि टू क्वेश्चन आ ही सकते हैं आउट ऑफ 5। तो 2 क्वेश्चन दे कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट सिस्टम। बाकी जो 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं कि जो वेस्टर्न जो जो जिसको हम कह सकते हैं कि फिलोसफी है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये एस्पेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन जब आपने इसकी मल्टीपल स्टडी की है, मल्टीपल मतलब रिवीजन सॉर्ट ऑफ, तो इसकी जब आप रिवीजन स्टडी करते हो तो देन यू विल फाइंड कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एस्पेक्ट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसके बाद हम कहते हैं कि 7th यूनिट है दैट इज ऑफ द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी अगेन आई कैन लुक एट कि इसमें आपके जो 3 टॉपिक्स हैं दे आर लिटरली इंपॉर्टेंट टू अस। एक तो सबसे पहले होता है कि परसेंटेज का सिस्टम है, एक जो दैट इज अगेन से इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये सेकंड टॉपिक है, दिस कैन बी काउंटेड एज अ सेकंड टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक है दैट इज ऑफ द एवरेजेस। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इस पे आपकी जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट से 5 क्वेश्चंस जो कि आपको 7th यूनिट में आने वाले हैं। लेकिन इसका जो बेस है वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स। तो जो मैथमेटिक्स है उससे आपको एक फाउंडेशन मिल जाती है सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट से 5 यूनिट, 5th यूनिट, and on that basis you can attempt say 5 questions from the data interpretation. Then we move to the next topic. Next topic is that is of the ICT. ICT is again से very important to us, जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल है, एजुकेशन है, या इसमें स्वयं आता है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो दे हैव स्टार्टेड से नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स। कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अपने इनिशिएटिव्स हैं, दे माइट बी काउंटेड एज 35 to 40। तो उनकी जो ग्रास्पिंग है इट्स अगेन इंपॉर्टेंट टू अस। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पे लॉन्च करते हैं, लेकिन जो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो उनकी एक मल्टीपल स्टडी है, उसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, उन सबकी स्टडी आपने करनी है सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपकी इस पे ग्रास्पिंग अच्छी है तो दे वॉन्ट से टेक से एनी टाइम। आपने सिंपली इनको टिक करना है एंड यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट कि आपका जो आंसर है वो ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं टू क्वालिफाई द नेट JRF एग्जाम है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। देन वी मूव टू द से नेक्स्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके एक तो बेसिक एस्पेक्ट्स है कि जैसे कि जिसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स है, या इसमें होमियोस्टेसिस है। तो आपको मतलब कि जैसे पोल्यूशन से फ्री इन्वायरमेंट में रहना है, तो उसके इसमें क्या होता है कि मतलब जो हमें एक ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी मिली हुई है सो दैट वी कैन स्टे से हेल्दी। तो ये सिचुएशन हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि वी हैव टू अचीव सर्टन थिंग्स कि इसमें जो पोल्यूशन का लेवल नहीं होना चाहिए। तो वी लुक एट दोज थिंग्स कि इसमें जो पोल्यूशन है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या जिसको हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो मीथेन है। तो दिस कैन बी टेकन एज अ 2 मेन से कल्प्रिट्स। इसके अलावा क्या है कि जो हैवी मेटल कॉन्टामिनेशन है
अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें SDG MDG है, तो इस पर जो जून 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें SDG MDG है, उस पर काफी क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हुए हैं कि आपको जो 17 इसमें जो गोल्स मेंशन्ड है या MDG का 8 गोल्स हैं, तो इनको आपकी आपकी जो एक ग्रास्पिंग है दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये एस्पेक्ट आपने हमेशा मतलब करके चलना है, सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क इन द एग्जाम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आपने उसकी आपने ग्रास्पिंग की हुई है, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मतलब हो सकता है कि यू कैन गेन से गुड मार्क्स इन द यूनिट 9। इसके अलावा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये भी आपने डेफिनेटली करके चलना है। कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसमें जो 2030 तक जो हमने टारगेट है वो जो सेट किए हुए हैं, तो उसमें उसका उसकी नंबरिंग है, तो हाउ इज दैट टू बी मतलब मेमोराइज्ड। तो अगेन से दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसके अलावा ये एस्पेक्ट तो आपने करने ही करने हैं। और टिल डेटा इंडिया का क्या स्टेटस है उसमें कोई फैक्ट्स हो तो यू कैन से रिमेंबर दोज थिंग्स आल्सो। देन इसमें ये होता है कि एनर्जी में जो मेन फोकस किस पे है, दैट इज ऑन द ग्रीन वेस्ट कि हाउ टू गेट से एनर्जी। तो ये एस्पेक्ट अगर आपने मतलब किया हुआ है, डेफिनेटली 1 to 2 क्वेश्चन है इसी एस्पेक्ट में से पूछे जाने वाले हैं। देन वी कम टू नो कि इसमें जो कि जैसे पोल्यूशन है या जो हैजर्ड्स हैं इनको हमने कैसे कंट्रोल करना है लाइक वाइज, तो उसमें कई टेक्निकल टर्म्स हैं विच हैव बीन गिवन इन द बुक। तो ये एस्पेक्ट है आपने करके चलने हैं सो दैट मतलब आपका जो एग्जाम में कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा रहे। इसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट जो ट्रीटीज हैं जिनके इसके इनके इसके टॉक अबाउट द एनुअल जो COP होते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो शायद वो चल भी रहा है इन दिनों में या इट हैज फिनिश्ड। तो ये एस्पेक्ट अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या इसमें थी, इसमें आउटकम्स थे, तो आउटकम्स हैं वो आपने रिमेम्बर करने हैं। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी जैसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है उसके कौन से टारगेट्स हैं, और जो टेम्परेचर है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं कि उसका जो टारगेट है वो 2 डिग्री है या 1.5 डिग्री है। तो ये कंसेप्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इन केस की आई ट्राई टू टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि जो टेम्परेचर है अर्थ का एज ऑन डेट दैट इज 15 डिग्री। मैं एक थोड़ा रफ सा आइडिया ले रहा हूँ, this might be somewhat less also 14 point, but for the sake of the simplification कि this is counted as a 15.2 डिग्री, लेकिन इसमें हम जो टारगेट है वो 1.5 का भी रख के चलते हैं, तो 15 डिग्री और जो उसमें एडिशन करे 1.5 का, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी ऑफ द 10%। लेकिन उसको हम सिंपल वे में काउंट करते हैं कि हाँ जी 1.5 है, तो 1.5 है, ये हमें लगता है कम है, लेकिन इन केस ऑफ द परसेंटेज तो उसमें जो डिफरेंस कितने का आ जाता है दैट इज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10% सॉरी, तो उसमें 10% का डिफरेंस आता है। तो अगेन से दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जैसे हीट वेव्स हैं लाइक वेज, तो ये जितने भी एस्पेक्ट हैं ये आपने मतलब दे शुड बी डन इन ए वेरी प्रॉपर मैनर कि जैसे आप जो आपका जो मेन कंसर्न है दैट इज टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, तो ये एस्पेक्ट है हमेशा प्रॉपरली मतलब करके चलो। इसमें लाइक कि जैसे एक तो पेरिस एग्रीमेंट है या उसके बाद भी जो कॉप्स हुए हैं तो उसमें क्या हुआ, तो जैसे मॉप्स होती हैं, तो मॉप्स का मतलब MOP है, तो उनका भी मेन क्या एस्पेक्ट होता है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी है उसकी हमने प्रिजर्वेशन कैसे करनी है। ओके, इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये एस्पेक्ट अगेन दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। उसके बाद हम जाते हैं टू द 10th यूनिट। 10th यूनिट है बेसिकली इट इज लिंक्ड विद द हायर एजुकेशन। ये फर्स्ट यूनिट है दैट इज लिंक्ड विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। थर्ड है कम्युनिकेशन है। जो 8th यूनिट है दैट इज लिंक्ड विद द ICT। और जो 10th यूनिट है इन कॉन्टिन्यूटी वी कैन से टू इट कि जो हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है इट इज अगेन से इम्पॉर्टेंट टू अस। तो हायर एजुकेशन में ये होता है कि एंशियंट सिस्टम है उसकी हम स्टडी करते हैं इन द 6th यूनिट इटसेल्फ। उसका एक बेसिक सा आइडिया हम लेके भी चलते हैं कि पहले भी कभी ऐसा आता है टॉपिक तो। लेकिन जो 6th यूनिट है, 6th यूनिट में एजुकेशन की कुछ इंट्रोडक्शन होती है। देन वी मूव टू द 10th यूनिट। 10th यूनिट में जो सिस्टम है विहाराज है या महाविहाराज है, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो कैसे डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो दे हैव बीन गिवन इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर इन दिस बुक। तो इनकी इनकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो वी नीड टू से टू देम कि उसमें कौन कौन सी जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर टेकन प्लेस।
अब उसमें ये होता है कि वी कैन से कि जो इंडिया है तो इट वाज नोन एज अ जगत गुरु, तो स्टिल वी कैन से टू इट कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया को फिर कहते हैं कि इट इज टू बी टेकन एज अ जगत गुरु। तो इन दिस कैन बी टेकन, जिसको हम कहते हैं ना कि जो हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है या जो जिसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स है, तो वी वर रनिंग एट द टॉप पोजीशन। तो ये एस्पेक्ट है, अगेन अपने करके चलने हैं सो दैट वी गेट से। ऐसा नहीं है कि इसकी हमने मगिंग की तो मगिंग से हमारा काम चल जाता हो। तो इसमें जो फीलिंग ऑफ प्राउड है वो होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि सो दैट वी गेट से कॉन्फिडेंट। तो ये एस्पेक्ट आपने करके चलना है। इसके अलावा इसमें जो इंडिया में जो सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें डेफिनेटली जो कि जिसको हम कहते हैं कि इस्लामिक रूल है या जिसको हम कहते हैं कि मुगल रूल है, तो एजुकेशन है उसमें वो काफ़ी फ्लरिश हुई। तो दैट सिस्टम वाज फॉलोड बाय द ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश को हम क्या कहते हैं, बेसिकली सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंस थी किसकी थी, दैट वाज ऑफ द सर्टिफिकेशंस की एजुकेशन है दैट हैज बिकम से फॉर्मल इन नेचर। जो इवन जो असेसमेंट है उसका जो मेथड है इवन दैट हैज बिकम से वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी वैल्यूज हैं, ठीक, तो वो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो जो ये सिस्टम है ये आपने प्रॉपरली करके चलना है। इसमें जो सेटअप हुए NIFR है तो उसको भी आप देख के चलो कि उसमें जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन सी रही हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इवन दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, तो इनकी प्रॉपर आप अंडरस्टैंडिंग है एक वो डेवलप करो। तो ये एस्पेक्ट है आपने की है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो डेवलप हुए इन द बिगनिंग ऑफ द से 19th सेंचुरी है, फिर 20th सेंचुरी है, क्योंकि दिस कैन बी टेकन एज द फाउंडिंग एरा। इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द पंजाब यूनिवर्सिटी, तो विच वाज सेटअप इन से लाहौर, तो दैट वाज द फोर्थ यूनिवर्सिटी। उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज है वो आनी शुरू हो गई। इसमें जो सिंडिकेट का सिस्टम है या जो सीनेट का सिस्टम है, तो दे आर लिटरली इंपॉर्टेंट टू अस। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इवन जो AMU है उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ये आपने करके चलना है कि जैसे सीनेट है उसकी क्या पावर्स थी एंड उसका जो रोल है हाउ इट हैज चेंज टू सम एक्सटेंट। इसमें ये नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट मगिंग, लेकिन इसका एक बेसिक्स आइडिया आप लेके चलो कि जो ब्रिटिश एरा है तो उसमें एजुकेशन का सिस्टम कैसे था, उसमें ये इंस्टीट्यूशन है ये कैसे प्रिवेल की। तो दीज एस्पेक्ट्स आर अगेंस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें यह है कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है इसको हम कहते हैं कि दिस कैन बी काउंटेड एज द इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी जो फंडिंग है वो सेंटर से भी होती है। इवन इट वाज अरेंजमेंट बिटवीन द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक्सेट्रा। तो ये अरेंजमेंट कैसा था, कब इसकी शिफ्टिंग हुई, तो ये इसकी जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं ये भी आप याद करके चलो। तो ये एस्पेक्ट अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये करके चलते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कि जिसको हम कहते हैं ना कि गवर्नेंस है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि दैट इज द गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग ये नहीं होता कि वी हैव टू टॉक अबाउट द सेंट्रल लेवल कि उसमें जो पॉलिटिक्स है वो कैसे थी लाइकवाइज। तो यहाँ पे जो सिस्टम है इनके इसकी भी ट्राई टू लुक एट द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। तो उसमें क्या बनता है कि जो जो यूनिवर्सिटीज हैं तो हाउ द गवर्नेंस ऑफ द सिस्टम से टुक प्लेस। तो ये एस्पेक्ट है अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं मान के चलना कि जिस सिलेबस आपने स्टडी करना शुरू किया है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मोनोटोनस। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फैक्ट बेस्ड है वो करना है। आपने आपके जो असर्शन एंड जो रीजन के क्वेश्चन है अगेन से दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब ये है कि जो जून 25 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें काफ़ी जो फीडबैक मिली है ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन कम थे या स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है। द फोकस किस पे था उनका, द फोकस वाज ऑन द क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो उसमें आपकी जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। उसमें कई जो जो फिल्म्स हैं उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन तो मैंने खुद आइडेंटिफाई किए थे, बट वी डोंट हैव टू गो टू दोज थिंग्स। इससे क्या है कि दिस कैन ओनली बी टेकन एज अ डिस्ट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इनकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस कैन नॉट बी टेकन एज ए स्पेसिफिक टॉपिक आल्सो कि इसको हम बुक से स्टडी करके जाएं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर आपकी नॉलेज है अच्छी है तो यू कैन अटेम्प्ट से दोज क्वेश्चंस, नहीं है तो स्टिल वी डोंट हैव टू मेक से अपफिल एफर्ट्स। अब जो एग्ज़ाम कोई भी होता है तो उसमें डेफिनेटली जो टेंशन है
तो दिस कैन बी टेकन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द से जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है। तो ये एस्पेक्ट है, ये भी आपने अवॉइड करना है कि आपने इन केस की यू हैव टू बिकम ए टीचर। टीचर का मतलब ये होता है कि उसका जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो अभी से आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि जब भी आपने एग्जाम देना है तो उससे पहले जो पीस ऑफ माइंड है दैट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये एस्पेक्ट हमेशा माइंड में रख के चलना, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें जो माइंड है दैट इज गोइंग टू प्ले द मेन रोल। तो इन केस की इट इज नॉट पीसफुल तो वी डेफिनेटली माइट बी लूजिंग से 1 और 2 क्वेश्चंस। और जो 1 and 2 क्वेश्चंस है उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है वी कैन से टू इट कि आई हैव सीन से हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स कि कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो है वो जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ ड्यू टू 2 मार्क्स, ड्यू टू 4 मार्क्स लाइक दिस। तो ये एस्पेक्ट है दैट मस्ट बी अवॉइडेड। और इसमें डेफिनेटली आपके लिए जो पीस ऑफ माइंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें इसके लिए वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये जो स्ट्रेस है ये हमने मतलब दिस शुड नॉट बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। तो ये सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस है वो आपको अवॉइड करनी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ड्यूरिंग से एग्जाम ही अवॉइड करनी है, बट थ्रू आउट लाइफ वी हैव टू से टू इट कि आपको लाइफ में बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन दे कम टू अस। तो उनको हैंडल कैसे करना है, तो उसको हमें हैंडल करना है कि सो दैट दे डोंट से बिकम द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये एस्पेक्ट अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइफ में प्रोग्रेशन करनी है तो प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि वी हैव टू लुक अहेड। तो उसमें ये होता है कि कोई भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप में रिग्रेशन की पॉसिबिलिटीज है तो दैट मस्ट बी अवॉइडेड। इस केस में जो माइंड मैनेजमेंट है दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये एस्पेक्ट हमेशा आप माइंड में रख के चलो कि जब भी आपने एग्ज़ाम देना है तो उसमें उसमें लाइक कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के जो ड्यूरिंग दोज डेज ओनली कि 3-4 डेज में कि वी हैव टू स्टे वेरी काम। तो ये हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट होना चाहिए कि वी हैव टू अवॉइड सच सिचुएशंस विच कैन लीड अस टू द टेंशन। हो सकता है टेंशन का जो रीज़न है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट का रहा हो, या हमारी किसी टेम्पो वेम्पो वाले से लड़ाई होगी, या कुछ और लाइक वाइज की जो टेम्पटेशन है वो हम अपना जो है टेम्पर है वो लूज कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन है उनको आपने अवॉइड करना है। तो पेशेंस का जो एलिमेंट है दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो आपने ऐसी सिचुएशंस है उसको अवॉइड करना है सो दैट आपका जो इकोसिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि आपने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है अराउंड योर सेल्फ, तो दैट मस्ट बी वेरी वेरी प्रॉपर टू यू। तो उसमें ये एस्पेक्ट है हमेशा आपने ध्यान में रख के चलना है। दिस कैन बी टेकन एज अ लाइफ विनिंग मतलब से स्ट्रेटजी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं कि हाँ जी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसमें आपने 2 या 3 टिप्स है उनका ध्यान में रखना है। बट टिप्स वो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर से सर्टन सिचुएशन ओनली। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो यू कैन से एवरी काइंड ऑफ द सिचुएशन इन द लाइफ। तो ये एस्पेक्ट है, ये आप हमेशा माइंड में रख के चलो। और आपने टेंशन नहीं लेनी कि हाँ जी इतने मार्क्स आपके आएंगे नहीं है, कि आपने ओवर कैलकुलेटिव नहीं होना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि ये नहीं है कि आप मार्क्स है उसकी कैलकुलेशन ही कर रहे हो ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। उससे भी क्या होता है कि स्ट्रेस टाइप सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। आपने एक स्ट्रेटेजी है उसको आपने कार्व आउट किया, उसके लिए आपने एक्शन भी लिया, आपने जितना भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के उनको आपने प्रॉपरली किया भी है। तो दैट एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन आपने इसमें ओवर कैलकुलेशन नहीं करनी कि भैया कि मतलब उससे मतलब आई हैव सीन से सो मेनी सिचुएशंस। तो उसका अल्टीमेटली हमें बेनिफिट नहीं मिलता। वी नीड टू बी कॉशियस ड्यूरिंग द एग्जाम, उससे पहले भी उसकी हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलें। लेकिन ये सिचुएशन है वो भी हमें अवॉइड करके चलनी है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है तो दैट मस्ट बी अवॉइडेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको अपने बिल्कुल करना ही नहीं है। दिस सिचुएशंस माइट हैव टू बी हैंडल्ड, बट अगेन से यू नीड टू सी टू इट कि आपने, क्योंकि यू आर ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, या तो आपकी पीजी है वो चल रही है तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी मेच्योर होना चाहिए टू हैंडल से सच काइंड ऑफ द सिचुएशंस। हम जो बुद्धिज्म है उसमें हम स्टडी करते हैं ना कि जो मिडल पाथ है लाइफ में वो अडॉप्ट करना है। तो जो मिडल पाथ है वो सिचुएशन अब भी हमें अवॉइड करनी है सो दैट कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको हम अचीव कर पाए। आपके कोई एग्जाम मतलब कोई लिंक्ड क्वेश्चंस हो तो जिसमें आपको लगता है कि यू आर गेटिंग से एप्रीहेंसिव या डाउटफुल हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन केस कि यू फील लाइक दैट कि इसमें मैं आपकी कोई हेल्प है वो कर पाऊँ।
कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा छोटे ही होते हैं, लेकिन जो डाउट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू बी बिगर एंड बिगर, कि वो हमेशा लार्ज होते हैं। अगेन कैलकुलेशन है, किसी की छोटी या बड़ी नहीं होती, बट वो डिपेंड करता है कि उस टाइम उसका क्या कंसर्न था। तो दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपके कोई डाउट्स हैं तो आई विल फील कि आई कुड हैव हेल्प्ड यू इन सच सिचुएशंस। Sir, we'll take the question and answer. I'm sorry. After the deliberation of the speaker as well. If anybody has any question directed towards KVS Madan sir, Definitely. please type it in the chat box. Yes, sir. क्योंकि एग्जाम में जो सिचुएशन है ना, सबकी एक जैसी होती है। इन केस की इवन आई हैव टू अपीयर इन द एग्जाम, तो कुछ एप्रीहेंशन तो होनी है, इट्स बाउंड टू हैपन। बट उससे ये है कि उसमें मतलब दैट शुड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ द फियर इन द माइंड, कि जिससे मेरी परफॉर्मेंस है लाइक वाइज, तो आई एम नॉट एबल टू से डू वेल इन द एग्जाम। तो डेफिनेटली ये एस्पेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। Okay, sir. If anybody have any questions related to this, please write in the chat box. Sir will take after this session. Okay, thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge with us. Can we move forward? Definitely. And my Thank you. wishes are for every student कि they must do say well in the exam. इसमें ये होता है कि अभी जो आफ्टर दिस सेशन था, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, तो मैंने यही पहले भी बोला था कि लाइक वाइज। तो Okay, sir. Okay, once again, thank you, sir, for guiding us. Thank you very much. Now moving forward, I would like to invite our next esteemed speaker, Ms. Toshiba Shukla ma'am, to share their valuable insights. Ma'am, now stage is yours. Yes. So hello everyone. Good evening. And first of all, thank you so much, Shodh Bharat, for having me here. अब एक ritual सा बन गया है, I believe. When exams are announced और शोध का कॉल नहीं आए तो अटपटा लगने लगता है. So thank you once again for giving this opportunity, and of course, Madan sir, if you are still here and listening, it's an absolute honor to share the podium or whatever the platform with you आपके साथ, because आपकी बुक जो है benchmark सेट की थी, उसके बाद हम सब राइटर्स बने, लेकिन आपकी बुक से हमने पढ़ा and we qualified the examination. So thank you so much for enlightening us. आपके क्योंकि काफी समय हो चुका है और आज एक ओरिएंटेशन प्रकार का सेशन है, तो हम पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे. हम ये देखेंगे कि पेपर 1 क्या है, पेपर 1 कैसे पढ़ना चाहिए, और पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रारूप कैसे बदल रहा है. बिकॉज पेपर 1 सबको पता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो हमको धीरे धीरे रियलाइज होती है. शुरुआत में हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं, पर जब वो हमको वापस से परेशान करने आता है और हमारा जेआरएफ छूट जाता है. बिकॉज हिस्ट्री में वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग मेकर्स, राइट. राजा से ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है राजा बनाने वाले की. तो हमने पेशवास के बारे में सुना है, हमने सैयद ब्रदर्स के बारे में सुना है, हमने कामराज जी के बारे में सुना है. दैट these people have played a very pivotal role in making the kings, and same is your paper 1 for you. तो आप लोग अपने सब सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं. आई एम श्योर आप सब का सब्जेक्ट जो भी है पेपर 2 आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपका महारत है, लेकिन उसमें भी आप एक हद तक परफॉर्म कर सकते हो. और स्पेशली अगर आपने पिछले 2 साल के कट ऑफ देखे हैं, इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी, पॉल साइंस, इनके जो कट ऑफ हैं वो आसमान छू रहे हैं. सो इफ द कट ऑफ इज गोइंग अराउंड 248, इट्स नॉट अ जोक, राइट. मतलब आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति कितना, स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है पेपर 2 में और पेपर 1 में. और पेपर 2 में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैं बोल रही हूँ 100 में से 90 भी सही करके आओगे, तो भी अगर आपका पेपर 1 कमजोर है तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा. सो पेपर 1 शुड बी योर फोकस, एंड पेपर 1 इज सच दैट यस ऑफ कोर्स कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी 220 था. तो पेपर 1 को पहले तो अपना दोस्त बनाना सीखिए, बिकॉज मुझे पता है एक एलिनेशन की फीलिंग होती है और पेपर 1 पढ़ने का शुरुआत में मन नहीं करता.
बड़ा वैसा लगता है कि सारी चीजें पढ़नी है ना, तो वी से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बिकॉज ऑलरेडी यू आर मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट. पेपर 1 इंटेल्स यू टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जो हमने शायद स्कूल में एकदम नाक मुंह बना के पढ़ा था. आई एम नॉट टॉकिंग टू द हिस्ट्री पीपल. हमको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है. वी हैव टू स्टडी टीचिंग, वी हैव टू स्टडी कम्युनिकेशन. But trust me, these all subjects play a very important role in actually, you know, what we are becoming eventually. अगर आज हम एक प्रोफेसर बनेंगे या आप लोग रिसर्च स्कॉलर बनोगे, तो आपके लिए क्यों यूजीसी ने, अभी तो यूजीसी बोल पा रहे हैं, विंटर में आपको पता है सेशन में एक बिल आ गया है जिसमें अब HECI हो जाएगा. तो मैं तो अपने स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि जब तक यूजीसी नेट है क्वालिफाई कर लो, नहीं तो फिर हैकी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा. तो यस, सो यूजीसी ने आपका जो सिलेबस बनाया है बहुत ही स्पेसिफिकली क्यूरेट, जैसे अभी मदान सर ने भी बताया, उन्होंने एक एक सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया. टीचिंग में ये है, रिसर्च में ये. मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि अभी 1 महीने बाद पेपर है, तो आप सबको सिलेबस तो पता ही होगा. तो नॉट गोइंग टू द सिलेबस पर से, बट ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. पहले वो कम्युनिकेशन में सिंपल पूछते थे, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, तो हम सबको पता है. लेकिन अभी वो आगे बढ़ चुके हैं. अभी वो पूछ रहे हैं कम्युनिकेशन में मूवीज के बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज मूवीज, आर्ट, सिनेमा इज समथिंग. अभी धुरंधर सबने देखी है, राइट? वी ऑल एंजॉयड. आई एम श्योर आपने शायद नहीं, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने नहीं देखी होगी क्योंकि आपका पेपर है, लेकिन अगर देखी होगी तो यू नो हाउ आर्ट, मीडिया, सिनेमा इम्पैक्ट्स अस, राइट? सो वो पूछने लग गए. हरीश चंद्र, आलम आरा कबाई, हॉलीवुड मूवीज के बारे में पूछने लग गए हैं. वो आपसे डांस फॉर्म्स और ड्रामास के बारे में पूछने लग गए हैं. तो देखिए, मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई हूँ जो आप सबको पता है, मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि अब आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी कैसे चेंज करनी है, बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज सिग्निफिकेंटली. इवन इफ यू टॉक इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, एक बहुत सिंपल टॉपिक है. मतलब मैं बच्चों को बोलती थी कि कम्युनिकेशन बहुत कम आया, हाँ मुझको पता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी कौन सी, लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ना है. वी कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, वी हैव टू लीव सर्टेन थिंग्स. आवर एम इन पेपर 1 शुड बी 42 करेक्ट क्वेश्चंस, नथिंग लेस देन दैट. मतलब 42 हमारा एक पॉइंट होना चाहिए कि उससे कम, मतलब 35 आ जाए, 35 से लेके 40 के बीच में अगर आप फंसोगे तो वो ठीक है, यू विल बी एबल टू मैनेज, बट वी हैव टू टारगेट 40. And to have that 40 correct questions, you have to make sure कि जो अब आपसे एनटीए एक्सपेक्ट कर रहा है, अब आपसे एनटीए एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पहला न्यूज़पेपर पता हो, है ना? तो भारत का पहला न्यूज़पेपर जो था वो हिकी ने कब बनाया था, या अमृता बाजार पत्रिका कब आई थी, या प्रेस को सेंसर कब किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था. सो ये हम पेपर 1 में कभी उम्मीद नहीं करते, लेकिन पेपर 1 में ये पूछ रहे हैं. और पेपर 1 में वो आपको एक जागरूक नागरिक बनाने की कोशिश कर रहा है. अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया. नाउ समथिंग विच इज ऑफ लॉट ऑफ कंसर्न. अभी दिल्ली एनसीआर में AQI की बातें हो रही हैं, तो यू कैन एनी टाइम एक्सपेक्ट, बिकॉज 2023, 2024 हमेशा AQI से रिलेटेड क्वेश्चन आए. 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं. नो, दे विल कंफ्यूज यू. सबसे पहले हमको ऐसा लगता है अच्छा 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा. अब यहाँ पे the thing is in the detail. I mean, you have to go into the details कि कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट्स हैं. AQI इस ईयर में आया, तो उससे पहले भारत में क्या था, कोई इंडेक्स था कि नहीं था? हाँ था, उसमें 12 पोल्यूटेंट्स आते थे. अच्छा, अब इसमें AQI है, तो AQI में अभी दिल्ली में GRAP लगा हुआ है, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, इसके 4 चरण क्या होते हैं. आपको थोड़ा सा अपने जो एक लाइंस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बुक तो आप, मेरी भी बुक है, सर की भी बुक है, आप बुक से पढ़ते हो, सब पढ़ रहे हो, सब बुक बहुत अच्छी है, यू विल गेट एवरीथिंग देयर. बट व्हाट विल मेक यू डिफरेंट एंड व्हाट विल मेक यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग पैटर्न. बोलते हैं ना, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी नब्ज पकड़ना जरूरी है. तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी. आई मीन, इफ आई एम एबल टू शेयर इट, अदरवाइज हम बोल के भी डिस्कस कर सकते हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Yes, so I hope, is it visible to you? This fan is there. If I'll maximize it. It's visible, ma'am. But is it visible if I maximize? Can anyone? Now it's okay, ma'am. It's okay now. It's okay. It's visible. ठीक. Fine.
तो सबसे पहले तो ये जरूरी है समझना, पेपर 1 हो या पेपर 2 या कोई भी एग्जामिनेशन हो, हम पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं है, इट जस्ट एन एग्जाम, राइट? क्योंकि आपको भी पता है आप सब इतने इंटेलिजेंट हो, इतना समय से पढ़कर यहाँ पे बैठे हो JNU DU में, सो यू ऑल आर वेरी क्वालिफाइड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो कोई भी ऐसी जिम्मेदारी का दबाव लेकर कोई भी पेपर मत देना, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद पेपर दे रहे हो। ऑलवेज टेक इट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू टेक एंड व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस, जैसे मदान सर ने बोला, हमको चीजों को समझना है, एंजॉय करना है। लाइक अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो आर्टिकल 29 पूछ रहे हैं, आर्टिकल 30 पूछ रहे हैं, तो हम उसको अगर ऐसे समझें कि हमको ये कैसे हेल्प करेगा, क्या हमको सही में अपने संविधान के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, क्या हमको सही में संविधान की कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने साल गुजार दिए और हमको ये बेसिक चीजें नहीं पता। बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 80+ subjects, right? I'm not talking about pol science people who are actually very well versed with all the articles. तो यहाँ पे पेपर 1 makes you a more जिम्मेदार सिटीजन, पेपर 1 makes you a more holistic, जो NEP ने भी बात करी है, जो हम अभी बच्चों पे फोकस करें। पेपर 1 ट्रस्ट मी, आप पेपर 1 पढ़ोगे तो आपको लास्ट में ऐसा फील होगा कि हम जो पहले थे अब हम बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेपर 1 बहुत बच्चे पढ़ते हैं, UGC की तैयारी बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन तैयारी का तरीका अलग होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ, कुछ लोग जीते हैं एकदम आम जिंदगी और कुछ लोग जीते हैं मेंटोर जिंदगी। अब मेंटोर जिंदगी क्या होती है? वही है जो आपको JRF दिलाएगी। अगर आम तरीके से पढ़ रहे हो, टीचिंग पढ़ के जाएंगे, रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के स्टेप्स पढ़ के जाएंगे, दैट माइट नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। 1 second. So these are the questions that you will find everywhere, और शायद मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं आपको ये बन जाएगा। जैसे हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच एक बहुत फेमस डिस्पैच है, सर चार्ल्स वुड ने लाया था। जैसे इसने काफी हद तक हमारे एजुकेशन को चेंज किया था। ये मैकॉले में, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला था कि मैकॉले की जो मानसिकता है 200 साल पुरानी, हमको उससे बदलना है। अब हो सकता है आपसे वो मैकॉले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। तो मैकॉले के बाद वुड डिस्पैच आया था, कहाँ हुआ, क्या क्या यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी, हम सबको पता है, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी थी, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल MDGs, ये सबको पता है, ये समथिंग दैट आई कॉल इट एज अ दाल चावल रोटी ऑफ एनी पेपर 1, तो ये पढ़ के ही जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आप सबको पता है। नंबर ऑफ SDGs कितने हैं? 70, राइट? दिस इज एवरीथिंग विच इज अ बेसिक पेपर 1 एस्पिरेंट शुड बी नोइंग। ISA की अभी एक रिसेंट असेंबली हुई है ना, और इस असेंबली में काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या है? ये भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौता था, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के टाइम लिया गया था 2015 में, COP21 में। अभी COP करंट हो रही है, जो कि बेलम में है, ब्राजील में, COP30। उसमें क्या क्या है, कॉप्स के बारे में पूछते हैं, ये भी बेसिक सबको पता होना चाहिए। लेकिन पेपर 1 अब ये नहीं रहा है, ये सबको पता चल जाएगा। अगर किसी ने भी रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखे हैं या रैंडम थोड़ा बहुत एक बुक से पढ़ लिया है, PYQ सॉल्व कर लिए, बन जाएगा। हमको अगर JRF चाहिए तो हमको अब थोड़ा सा मेंटोर जिंदगी की तरफ जाना पड़ेगा। हमको ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी जो पेपर 1 को टफ कर रही है। एंड हियर इज द एंटायर डिफरेंस दैट विल मेक यू क्वालिफाई योर JRF इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। द कॉन्सेप्ट्स जो अब पूछ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ऐसी गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के साथ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होता है। अब क्लाइमेट नेचुरल भी होती है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट फोर्सिंग होती है, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, नाउ these are the questions, these are the types of questions they are asking to make the paper difficult. जैसे अब दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। आप इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके कारण क्या है, सी लेवल राइज हो रहा है तो उसके कारण क्या है, टेम्परेचर हमको 1.52 डिग्री से कम रखना है, इससे ज्यादा होगा तो उससे क्या हम मतलब नेगेटिव इफेक्ट होगा, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गो इनटू द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। लाइक दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल लुक एंड यू विल नॉट आइडेंटिफाई। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कि अगर विंड स्पीड इंक्रीज कर दें 4 से 5 तो पावर आउटपुट कितना होगा, है ना। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे भी शायद ये एक बार देख के झटका लगा था कि ये मैं कैसे सॉल्व करूं। लेकिन अब वो आपसे एनर्जी एक टॉपिक है एनवायरमेंट में, यूनिट 9, and they expect you to know the details of energy like solar, wind, biofuel. Right now you know hydrogen fuel economy is at focus, तो हमको green hydrogen, blue hydrogen,
टर्कोइज हाइड्रोजन, है ना, लड़कियों को ज्यादा कलर समझ में आते हैं, वो पढ़ के जाना है। वो अब समथिंग विच इज राइट नाउ टू मच इन फोकस, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सोलार एनर्जी की बात करते हैं। सोलार एनर्जी हमेशा से रही है, लेकिन अभी सरकार का फोकस सोलार में बहुत ज्यादा है, एंड स्पेशली इंडिया ने अपना जो एनडीसीज थे एज पर अनाउंस इन द पेरिस एग्रीमेंट, वो भी अब अचीव कर लिए। हम 50% रिन्यूएबल तक पहुंचने वाले हैं। तो आपसे वो उम्मीद करेंगे कि आपको पता हो कि पूरे देश में विंड के पोटेंशियल कौन से स्टेट में ज्यादा है ना, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा विंड एनर्जी या सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देशों में भी पता होना चाहिए कि चाइना टॉप करता है, चाइना विंड में भी टॉप करता है, चाइना आपका सोलार में भी टॉप करता है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेट्स लॉ, दिस दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टडी, और उस प्रकार से वो आपसे उम्मीद करें। आईसीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईसीटी यूनिट 8 है। अगर कोई भी स्टूडेंट है और आप आईसीटी का सिलेबस देखोगे तो आईसीटी का सिलेबस सिर्फ एक बोलना चाहिए कि 4 लाइन का सिलेबस है, राइट? लेकिन आईसीटी के सिलेबस में इफ यू गो इनटू द डिटेल ऑफ द सिलेबस में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन they will ask you questions like everything which is right now around you. They will ask you something related to machine learning. They will ask you concepts like Bitcoin में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, है ना? तो you have to be updated, especially more तो अगर आप अभी पेपर देने जा रहे हो, because right now we all are surrounded with a lot of malware. मतलब हम सबके साथ जो साइबर सिक्योरिटी बोलना चाहिए इसका ऑपोजिट जो हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपसे फिशिंग पूछ सकते हैं, स्मिशिंग पूछ सकते हैं, है ना? वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंसमवेयर, क्या होता है। अभी डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये सारी चीजें एनटीए अब ज्यादा पूछ रहा है, बिकॉज उसको भी पता है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो पढ़ाएंगे, दे शुड बी नोइंग ऑल दीस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक्स आर स्टिल देयर। आई मीन यू शुड बी नोइंग कि 8085 प्रोसेसर कैसे काम करता है, रैम और रोम क्या है, डीरैम एसरैम क्या है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपका बेसिक नॉलेज है ना? हाँ, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि अगर मैं आईसीटी की बात करूँ तो आईसीटी गवर्नेंस में कैसे काम आ रहा है। लाइक दे विल आस्क यू सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। लाइक अगर हम नॉर्मल मॉल में जाते हैं तो हम जैसे ही मॉल के गेट में जाते हैं गेट खुल जाता है ना। हम अगर टोल का नाका क्रॉस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से हमारे पैसे कट जाते हैं, वी आर यूजिंग फास्टैग। नाउ दिस दे विल आस्क फास्टैग कैसी टेक्नोलॉजी यूज करता है, आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी थिंग्स इन अ वेरी दिमाग ओपन करके। ये अब वो जमाना नहीं है, पेपर बना वैसा नहीं रहा कि एक पुस्तक उठाई और जैसे हम इंजीनियरिंग में करते थे, मतलब मैं तो नहीं करती थी, काफी बच्चे करते थे कि 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हमने रट्टा मार लिया, या हमने मैडम हम क्या सिर्फ पीवाईक्यू लगा के चले जाएं। हाँ, हो जाएगा, शायद नेट भी छू लोगे, लेकिन पीवाईक्यू लगाकर जेआरएफ नहीं हो पाएगा। जेआरएफ के लिए हमको काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करनी है, और डिटेल में पढ़ाई, इफ आई टॉक अबाउट इट, व्हेन आई स्टार्ट अबाउट द डिटेल में पढ़ाई की क्या बात है, आई मीन इन हायर एजुकेशन ऑल्सो दे यूज टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे अभी सर ने बताया वैदिक एजुकेशन पूछते थे, तो हमको पता होना चाहिए कि पुराने गुरुकुल समय में शिक्षा कैसी होती थी। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, वल्लभी में क्या पढ़ाते थे, विक्रमशिला में किस ब्रांच की, बुद्धिज्म की कौन सी ब्रांच पढ़ाते थे। यू हैव टू नाउ सी द डिटेल्स। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यूनिवर्सिटीज को आप अरेंज करो ईस्ट से वेस्ट, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 बिहार में है, ये गुजरात में है, ये वाली कर्नाटका में है। तो ध्यान से सारी चीजें पढ़नी है। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है क्रोनोलॉजी। दे आर ऑब्सेस्ड विद क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में पूछेंगे नालंदा पहले आई, तक्षशिला पहले आई, विक्रमशिला आई कि वल्लभी आई, तो रट लो। मैं तो अपने बच्चों को रटवा देती हूँ, कुछ चीजें ना रट के हो जाती हैं, कोई ट्रिक व्रिक बना के याद कर लो। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बच्चों को बताए हैं, क्योंकि आई नो ह्यूमन ब्रेन है, कितना याद करोगे, पेपर 2 है, पेपर 1, तो कोशिश करके फॉर्म सम निमोनिक्स, है ना। अब वो निमोनिक्स कैसे भी हो सकता है, टीवी ओ बी एफ जी, आई मीन इट्स अप टू यू। आई काइंड ऑफ टीच स्टूडेंट्स विद अ निमोनिक, इवन इन फैक्ट विद रैंकिंग्स। हायर एजुकेशन में वी टॉक अबाउट NIRF, राइट? अभी रिसेंट रैंकिंग आ गई है, तो दे विल एक्सपेक्ट यू नो कि व्हाट आर द न्यू कैटेगरीज इन रैंकिंग। जैसे हर बार कुछ ना कुछ कैटेगरी ऐड होती है, इस बार भी कैटेगरी ऐड हुई है, और वो कैटेगरी ऐड हुई है सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस की, है ना। पिछली बार भी हुई थी स्टेट यूनिवर्सिटीज की, ओपन यूनिवर्सिटीज की। नाउ यू हैव टू बी रियली अपडेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। दे विल आस्क यू सच कॉन्सेप्ट्स। तो हमको थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा नया, जैसे अभी बोला कि सब जगह आप सुन रहे होगे IKS, है ना। 3-4 दिन पहले बोला कि 6th स्टैंडर्ड में आयुर्वेद की पढ़ाई होगी, NCERT चेंज कर रहे हैं।
तो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे स्पेशल फोकस है। अब इस पे स्पेशल फोकस है तो इसका मतलब आपको क्या पढ़ के जाना है हायर एजुकेशन में, हमको आर्यभट्ट की रचना क्या है ना, किसने कौन सी बुक लिखी है, पाणिनि ने क्या किया है, हमको चरक, हमको सुश्रुत, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। एंड आई बिलीव एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, हमको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड द एंटायर लाइफ, हमको ये ही चीजें नहीं पता जो हमारे भारत में है, और सरकार को अब जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है ताकि बच्चों को समझ में आए। तो अगर इसके बहाने, सिलेबस के बहाने भी, इफ वी आर एबल टू स्टडी दिस थिंग एंड our pride for the nation increases even for by certain percent, I don't mind such things because रटना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट में यू विल फील नाइस बिकॉज हमको ये सारी चीजें नहीं पता थी कि भारत का पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई थी, सुश्रुत का कंट्रीब्यूशन क्या था, चरक, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है हायर एजुकेशन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग दैट दे आर आस्किंग हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज का क्रोनोलॉजी, मतलब रटना आई नो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद पेपर दे रहे हो, मेक श्योर यू रिमेम्बर द ईयर्स मतलब सारी यूनिवर्सिटीज के, मतलब BHU कब आई, पटना कब आई, ISNDT कब आई, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 जो पहला मदरसा और पहला हिंदू कॉलेज बना था वो किसने बनाया, है ना, राजा राम मोहन रॉय ने कब स्थापना करी, है ना। तो ऑल दीज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इज द न्यू फेवरेट। आप 2024 के पेपर उठा के देखिए, 25 का पेपर उठा के देखिए, दे आर स्पेशली फोकस्ड ऑन दैट। तो हमने तो खैर बच्चों को याद करवा दिया कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी याद करके, ट्रिक याद करके, बट मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस। अनदर थिंग दे आर आस्किंग राइट नाउ इज लाइक द मिशनरी इंस्टीट्यूशंस, तो ये उनका फेवरेट है। थोड़ा सा वो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो ये ऐसे एरियाज के बारे में बोल रही हूँ जो आपके आउटलायर्स हैं। आई मीन यू ऑल स्टडी द बेसिक थिंग्स, आप वैल्यू एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, ये सब पढ़ के जाते हो, लेकिन व्हाट इज मेकिंग पेपर 1 डिफरेंट एंड डिफिकल्ट आर दीज थिंग्स। सो ट्राई टू स्टडी दीज एज वेल। इन्वायरमेंट में अब क्योंकि मैं कुछ क्लासेस लूंगी आगे जाके, तो मैं कोशिश करूंगी आपको ये सब चीजें पढ़ाने की। इन्वायरमेंट में एवरीथिंग करंट एंड स्पेशली द प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग लाइक वी हैव, है ना, जैसे क्योटो है, अभी जैसे COP30 बैलम में है, तो बैलम में क्या, बैलम एक्शन प्लान क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वाज डिस्कस्ड इन बैलम, है ना, उससे पहले क्या हुआ था, कहाँ पे फर्दर COP हुई थी, अब COP9 में क्या हुआ था, COP3 क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, COP21 में क्या हुआ था, ये आपको पढ़ के जाना है। सो दैट्स व्हाई वी से पेपर 1 इज वेरी डायनामिक बट इफ स्टडीड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। अब क्योंकि आप लोगों को 1 महीने बाद अगर पेपर देना है, नॉट इवन 1 month, so what I want you to do is like, because since it's an orientation session, I cannot teach you everything. I can just tell you how UGC or NTA is playing differently right now, right? So if you are studying teaching aptitude, ठीक है, आप टीचिंग पढ़ के जाते हो, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ के जाते हैं हम, गाग्ने, सोलो सब पढ़ के जाते हैं, ऑनलाइन मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा के अभी चैनल्स चेंज हो गए हैं, 40 चैनल, तो वो चैनल्स पढ़ के जाने हैं। अब ज्यादा क्या पूछ रहे हैं, वो ब्लेंडेड सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं, लाइक ICT का उपयोग टीचिंग में, ICT का उपयोग रिसर्च में। तो टीचिंग में हम ICT कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, पैडलेट क्या है, कहूट क्या है, माइंडमाइस्टर क्या है ना। सो दे आर जस्ट टेस्टिंग कि आप प्रैक्टिकल पर्पस में अगर आप एक टीचर प्रोफेसर बनोगे तो हाउ टेक savvy you will be, I mean how tech savvy you will be in if you are asked to prepare a kind of a quiz and you have to prepare or take quiz of the student, तो आप Mentimeter यूज, आपको पता है Mentimeter क्या होता है, तो वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पढ़ के जाइए। तो प्लीज स्टडी दीज टूल्स ऑल्सो। अगर आप अभी पेपर दे रहे हो, रिसर्च में ICT हम कहाँ यूज करते हैं, तो रिसर्च के सारे स्टेप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप टिल योर फाइनल स्टेप इन रिसर्च, डेटा कलेक्शन में, रिपोर्ट राइटिंग में, एवरीवेयर हम ICT यूज करते हैं। अभी तो क्योंकि AI भी आ गया है तो वो आपसे ये सारी चीजें रिसर्च में भी पूछते हैं। तो फोकस ऑन दीज थिंग्स मोर। प्लेगैरिज्म हमेशा एक फेवरेट टॉपिक है। परसेंटेज क्या है जो UGC के रूल्स के हिसाब से वो पढ़ के जाइएगा। हायर एजुकेशन में नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, भले कुछ मत पढ़ो, है ना, एक कोई वीडियो देख लो YouTube पे, मैंने भी अभी परसों लिया है, 2 घंटे का वीडियो है जिसमें पूरी शिक्षा नीति रट मारो। पूरी मतलब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, नहीं रट सकते, इंपॉर्टेंट चीजें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, HECI के वर्टिकल्स क्या है, 4 वर्टिकल्स के नाम बहुत बार पूछते हैं, NETF क्या है ना। अब उसमें हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, right? So these things you have to study. So here my request or my suggestion, if you are studying and if you still have some time in your hand, तो try to focus on these things. और अगर ऐसा लग रहा है कि अभी आपने सब पढ़ लिया है और अभी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो don't study anything new.
सिर्फ जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो और कोशिश करके अभी इन 20 दिन में जितने भी आप मैराथन, बिकॉज आई नो आप सब कहीं ना कहीं यूट्यूब से जुड़े होगे, कोई ना कोई कोर्स कर रहे होगे या some source or media you must all be studying from, try to attend the maximum sessions. तो वहाँ के PYQs, वहाँ के मैराथन अटेंड करिए, शोध पे अगर कुछ सेशंस होते हैं तो वो अटेंड करिए और सिर्फ अभी मल्टीपल प्रैक्टिस करिए, मतलब जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक श्योर दैट यू ट्राई टू कवर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो अभी आपने कर लिया है, बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें बताई तो हो सकता है आप लोग के मन में आ गया होगा कि ये सारी चीजें भी करनी है, तो जो अगली बार देंगे, मतलब ये नहीं बोल रही सिलेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन हो भी जाए और फिर भी अगर अगली बार दोगे तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स मोर, बिकॉज टेक्निकली ये सेशन होना चाहिए जुलाई में ताकि हमको पता चल जाए 3 महीने हमको क्या क्या पढ़ना है, पर ये सेशन हो रहा है 1 महीने पहले, तो अभी जो पढ़ लिया है फोकस सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट्स में करिएगा, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो टीचिंग हो। टीचिंग बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप उसको फोकस करोगे, जो हर बार सवाल आता है, ब्लूम से सवाल आता है ना, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स में, टीचिंग में मेमोरी टाइप्स, टीचिंग की थ्योरीज पूछी जाती है, सो यू प्लीज फोकस कि कौन कौन सी थ्योरी, बिहेवियरिज्म क्या है, ऑल दीज थ्योरीज, और किसने क्या बोला है, बंडूरा की सोशल थ्योरी क्या है, व्योस्की की थ्योरी क्या है, एक बार कोई भी टीचिंग का मैराथन देख लो, आपका टीचिंग का काम निपट जाएगा। हायर एजुकेशन मैंने आपको बता दिया है। ICT में try to focus on the basic side now, like just go by the basic every time they ask, मतलब CPU ALU क्या होता है ये सबको पता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, RAM ROM क्या है, मेमोरी डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट में अंतर क्या होता है, दे हैव बीन आस्किंग ICT में न्यूमेरिकल्स, तो नंबर सिस्टम अगर कर सकते हो तो नंबर सिस्टम जरूर करना। नंबर सिस्टम में बेसिक कैलकुलेशन पूछते हैं, बाइनरी, डेसिमल, अगर हमको मौका मिलेगा एक सेशन करने का तो हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बाइनरी कन्वर्जन होता है, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल, तो ये एक सवाल पूछते हैं। MS एक्सेल पूछते हैं ICT में। अब ये आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ नंबर सिस्टम का सवाल आता है, करके जाइएगा। लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मदान सर ने बताया, लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक ठीक है, इंडियन लॉजिक पे जरूर फोकस करना। इंडियन लॉजिक में कोशिश करके अगर जितने भी दिन बचे हैं फिलोसफीज पढ़ के जाइए, तो मतलब आस्तिक नास्तिक स्कूल क्या है, योग, सांख्य, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, द्वैत, अद्वैत, है ना, ये पूरा जो फिलोसफिकल पार्ट है। प्रमाण क्या है, 6 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थपटी, बहुत आसान है, सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार बैठ के कोई एक लॉजिकल रीजनिंग की क्लास कर ली, मैराथन कर ली, ट्रस्ट मी आपका एक बार में LR हो जाएगा। बस LR में ये है नए नए शब्द आते रहते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अनुमान, सो अनुमान के टाइप्स क्या है देख के जाइएगा। लॉजिकल रीजनिंग में ही देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज लॉजिकल फैल्सीज। नाउ वी ऑल कमिट लॉजिकल फैल्सीज, है ना, बहुत सारी फैल्सीज होती हैं, एड होमिनम है, एडवर्कंडियम है, स्ट्रॉमैन है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, एक वेबसाइट है लॉजिकली फैलिशियस, सो उसमें आपको अल्फाबेट वाइज सारी लॉजिकल फैल्सीज दिख जाएंगी। फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट क्या है, फैल्सी ऑफ कंपोजिशन, डिविजन, तो एक रात को बैठे हो बस उस फैल्सीज को स्कैन कर लिया, बिकॉज यू नेवर नो, है ना, you never know कि when it could be asked, and if you really want to study everything, yes, everything is there in my book as well, जो मेरी थ्योरी बुक है दिशा पब्लिकेशन की, उसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है। I have given the updated things as well, I have given the charts as well, and सब कुछ जो अभी करंट एग्जाम का डिमांड है, and after every theory we have given one question कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको हेल्प करेगा। अगर अभी आपको करंटली यू वांट टू जस्ट प्रैक्टिस मॉक और PYQ, तो ओसवाल की बुक है, Amazon पे आपको मिल जाएगी, उसमें 17-18 साल के सॉल्व PYQ है, तो अगर आप वो बुक खरीद लोगे तो आपको एक ही जगह पे 17 साल के PYQs मिल जाएंगे, पूरे सॉल्व हैं प्रॉपर्ली विद सम माइंड मैप्स एज वेल, तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, बिकॉज अभी हम एंड मंथ की बात कर रहे हैं, राइट। एंड इफ यू वांट टू जस्ट प्रैक्टिस मोर, देयर इज अ मॉक बुक ऑल्सो, जिसमें हमने 15 मॉक दिए हुए हैं, तो वो भी आप बुक ले सकते हो, बिकॉज अभी वी नीड क्विक मेजर्स, राइट। दिस इज नॉट अ टाइम टू स्टडी एलैबोरेटली फॉर 3-4 months, यू जस्ट काइंड ऑफ डू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। हम जो साथ में भी सेशंस रखेंगे आपके साथ ऑनलाइन, उसके माध्यम से जितना हो जाए, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस थ्रू PYQs एंड MCQs, राइट। सो मुझे लगता है कि इतना काफी है अभी बताने के लिए, नहीं तो सिलेबस तो बहुत सारा है, पेपर 1 बहुत सारा है। ये चीजें जो मैंने बताई हैं, दीज आई फेल्ट how the paper is changing, and आपको इस पे फोकस करना चाहिए, अदरवाइज द बेसिक रिमेन्स फॉर रिसर्च, टीचिंग। मैथ DI में बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हम मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, तो अगर DI में डर लगता है तो DI को पहले अटेम्प्ट मत करना, कॉन्फिडेंस चला जाएगा।
DI के मैथ्स के 5 क्वेश्चन पके पकाए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन पके पकाए। इनको अगर मैथ्स तुम्हारा स्ट्रांग है, बेसिक तुमको कैलकुलेशन आता है, तो बिल्कुल छोड़ के मत आना। अगर हम आरसी की बात करें, इतना हम सबका है कि हम एक पैराग्राफ पढ़ के उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर दे दें, आरसी जरूर करके आना। तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी फिर जद्दोजहद है, हम कोशिश करेंगे बाकी यूनिट्स में जो जो आपको लगेगा, आई एम श्योर थोड़ा बहुत अगर अच्छे से पढ़ लोगे, you will be able to manage at least 40 questions. So 35 से 40 से कम लाना ही नहीं है, seeing the cut off right now. And trust me, ये बच्चे बहुत पढ़ते हैं और यही बच्चे हैं जो पढ़ पढ़ के कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। तो we just cannot afford to not study and study less. We just have to make sure कि हम उतना तो टच करें paper one, and paper one will ensure that you get the JRF. Right? So I think आप लोग काफी समय से हो यहाँ पे live. I'll stop myself here. If you have any questions, if you want certain topics to be discussed, especially in the live classes, you can write down. आप अपने organizers को बता दीजिएगा कि ये वाला topic हमको पढ़ना है, तो हम specially उस topic पे focus कर लेंगे. Otherwise, yeah, feel free to shoot any question. If you are still awake, that is a clause. I mean, such sessions are boring here, I know. But ठीक है ना, करना पड़ता है. Thank you, ma'am. Thank you for your thoughtful insights. If anyone have any questions, any doubt regarding to UGC NET JRF, you may ask in chat box within 2 minutes. And Jatin ji, I think if any of our participants want to interact directly with ma'am, they may also do so. Yes. So ma'am, there are queries regarding some tips to remember mathematical reasoning. Mathematical reasoning, I mean, देखिए, mathematical reasoning, it's a thing that you have to practice. And in mathematical reasoning, you will be asked such conceptual questions like, you know, work and time, basic questions related to calendars. So that will just only get better if you practice questions. And trust me, maths remains same from a school till now. The more you practice, the more you will better. But you can just go through the basic formulas, like simple interest, right? Compound interest. These things are discount, consecutive discount. So reasoning is something, just thorough the formulas and practice as many PYQs. If you cannot practice the new question, just pick any PYQ book and solve all the questions that were asked, right? In one day you can have, I'm sure you can solve many questions. So till your examination, you will be this way covering a lot many variety of questions and the formulas. So that you have to remember, वो आपको याद करना पड़ेगा. बाकी variety of questions लगाइए. DI में भी जितने भी PYQs हैं उसको लगा डालिए. Generally pattern same रहता है. If it's not very complicated DI, I'm sure you will be able to manage it. Books PDF link I don't have, but yeah, book का Amazon link I have given. I will give you the OSWAL one also if you require. But and I think theory से ज़्यादा भी आपको PYQs की ज़रूरत होगी, so that also you can buy. Right? I mean, mostly it's about revision right now, because the number of days we are left with, it's only there for revision. Anything else? So if no participant is asking question, ma'am, on behalf of the participants, I'd like to ask, well, I was also writing in UGC NET exams, there's always a constant confusion going on in the mind that what time allocation should be given to the paper 1 and paper 2 to maximize our score, of course. I mean, you're asking while giving the paper or while preparing? No, while preparing, in the last phase of the preparation. Last phase, okay. I mean, see, it is very subjective again, but paper 1 is not something that could be done only in a month. That I'll say. Paper 1 requires at least 3 months of your entire preparation. Now it's up to you कि आप paper 2 कितना, कब से उसके बीच में कितना adjust करते हैं. And an ideal ratio should be like, you know, give more time to paper 2, because of course that is more number of questions and the distribution is more. So अगर आप 60% वहाँ दे रहे हो तो 40% यहाँ दे दो.
अगर आप दिन में सुबह से लेके पेपर 2 अपना पढ़ रहे हो तो शाम को मेक श्योर कि 2, ढाई, 3 घंटे पढ़ो पेपर 1। बट पेपर 1 के लिए 3 महीने चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने भी JRF 1 महीने पढ़ के लिया होगा। तो प्रॉपरली ट्राई टू डिवोट 3 to 2.5 months, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिपरेशन में आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अभी पेपर 2 बेटर हो रहा है, पेपर 1 में अपना टाइम बढ़ा देता हूँ। तो पेपर 1 फिर बच्चे ज्यादा पढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है व्हेन वी टीच, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इवेंचुअली ऐसा होता है कि बच्चों का पेपर 1 स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज हम इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर पेपर 2 के लिए उनको समय नहीं मिलता। बट ट्राई टू हैव अ बैलेंस, आई मीन डू नॉट give too much time to paper 1 only, so that you leave your paper 2. It should be 70-30, because 70 being your paper 2, 30 being your paper 1, which could be changed eventually in your preparation course, because paper 1 कई बार ज्यादा होता है, तो that could be changed. I guess I answered. Thank you so much, ma'am, for joining us. And now, I to formally express our gratitude, I now invite Mr. Arjun Anandji to deliver the closing remark on behalf of the Sodh Foundation, as he is our light barrier. Over to you, Anandji. जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स का, केवीश मदान सर का, अभी शायद लीव कर गए हैं, और तोशिबा मैम का। और जैसे मैम ने बोला भी कि हर साल जब भी हर फेज में एग्जाम आता है, सबसे पहले उनको भी इंतजार रहता है कि शोध का फोन आएगा, तो हमें भी इंतजार रहता है कि आपको हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा फिर से। और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया। शोध में हम जो काम कर रहे हैं, जैसे भी सर ने भी बोला कि एक सोशलाइजेशन इस तरह से होती है कि वो सिविलाइजेशन बन जाती है। और मैम ने भी कहा कि नालंदा, तक्षशिला, ये सब कुछ पहले रहा है, उसको हमने पढ़ना है, उसको हमको समझना है, क्योंकि वो एग्जाम के परे भी समझने की चीज है। परंतु वो समझने तक ही ना रहे और उन ट्रेडिशंस को हम कैरी फॉरवर्ड करें, उन ट्रेडिशंस को हम जिएं, उसको ही ध्यान में रख के शोध काम करता है। हमारा जो बिल्कुल बेसिक हमारा जो काम है, फंडामेंटल हमारा काम जो है, दैट इज क्रिएशन ऑफ एकेडमिक लीडरशिप। तो एकेडमिक्स में, रिसर्च में हम देखते हैं बहुत लोनली जीवन होता है रिसर्चर्स का। यूजुअली बहुत ऐसा जीवन होता है जो बहुत अकेले में जीते हैं, बहुत अपने में जीते हैं। तो एकेडमिक्स में लीडरशिप प्रोवाइड करना, एकेडमिक्स में आगे बढ़ के अपने साथ में लोगों का हैंड होल्डिंग करना, उनको आगे बढ़ाना, यह काम शोध करता है। और हमारे साथ वालों से ही हम सीखें, उनसे सीख के आगे बढ़ें। ऐसे ही हम भी तभी जुड़े हैं, और हम आशा करेंगे कि आप में से भी जो भी लोग अब शोध में क्लासेस भी ले रहे हैं या फिर हमसे किसी भी तरह से जुड़े हैं, आप लोग भी आगे बढ़िए, हमारी टीम से संपर्क करिए, हमसे जुड़िए। इस बार बेस्ट विशेष हैं सबको, सभी नेट JRF क्लियर करिए। उसके बाद अगले साल आप भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में रहिए, हमारे साथ जो है काम करने का मौका जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत सुलभ है। आप बस एक बार जुड़ने के लिए बात करिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्योंकि क्लासेस सिर्फ उन्हीं की होगी सब्जेक्ट्स की, जिन सब्जेक्ट्स में एक अच्छे नंबर में हमको एप्लीकेंट्स मिलते हैं, तो अगर किसी को लगता है कि उनकी क्लास नहीं हो रही है सब्जेक्ट की, पर उनको हेल्प चाहिए अपने सब्जेक्ट में, आप प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, आपको हम अलग से थोड़ी सहायता कर सकते हैं उसमें। बाकी मैं पुनः जो है धन्यवाद करूंगा सर का भी और मैम का भी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं धन्यवादी हूँ शोध की पूरी टीम का, जिसने दिन रात एक करके पूरी मेहनत करके ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, और आगे भी आने वाले सत्रों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका आयोजन करेंगे। मैं धन्यवादी हूँ हर एक जुड़े हुए छात्र का, अभ्यर्थी का, जो एग्जाम देने वाले हैं, परंतु अगर वो नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो उनको ही कुछ सहायता हम कर पाए, इस ये मौका हमें दिया, ये अवसर हमें दिया, मैं इसके लिए भी उनका धन्यवादी हूँ। सभी का धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। Thank you, sir. As we draw this powerful session to a close, I extend grateful to Dr. KVS Madan sir, Ms. Toshiba Shuklam ma'am, for their insights and motivations. To our audience, your presence and participation make this event truly meaningful. Also join our social medias, handle and update on future events and publications. Finally, as it conclusion today's session of idea, I invite Adarsh ji with the Kalyan Mantra. Adarsh ji. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you once again to everyone who made this event possible. Now, can we leave, sir, with your permission? जी नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। Namaste. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you for joining. Namaste, ma'am. Okay, sir. Thank you.